Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Myself Harshit Trivedi, your math teacher. Students, in my previous class I started the chapter factorization. Okay, there I discussed three type of method. First is by taking out common factor, second is by grouping method, and third is by splitting method. Now today I will solve this question by splitting method. Now let's see the solution of this question. Here we use the identity. Firstly we take common, minus 2. Okay. Then the equation become 1 minus 2 a plus b minus 3a plus b whole of square. Okay. Now let a plus b is equals to x. Put the value of a plus b is equals to x. Equation become 1 minus 2x minus 3x square. Okay. Here this is a quadratic equation. Now student, what will we do? Firstly we multiply minus 3x into 1. We get 3x square. Okay. Now split the 2x. We get 3x square minus 3x plus x plus 1. Okay. Check it. Minus 3x plus x is minus 2x and minus 3x into x is 3x square, minus 3x square. Now we take common minus 3x. After taking common we get minus 3x x plus 1. Okay. Here we take common plus 1. The equation become 1 into x plus 1. Now take common x plus 1 from complete equation. We get x plus 1 into minus 3x plus 1. Okay. Now put the value of x, which is a plus b. We get a plus b plus 1 bracket minus 3 a plus b plus 1. Here when we multiply, it become minus 3a minus 3b plus 1. This is the final answer of the equation. Okay. Okay student, the next is if we have any quadratic equation ax square plus bx plus c. Okay. Here a, b and c are the real number and x is variable. Then how we check this quadratic equation is factorizable or not? For this we find b square minus 4ac. Okay. If the value of b square minus 4ac is perfect square, then we can factorize this equation. Otherwise we cannot factorize the equation ax square plus bx plus c or any quadratic equation. Now let's see the example. Is 5x square plus 17x plus 6 is factorizable or not? If yes, then factorize it. Now let's see the solution. For this, firstly we compare this equation. Comparing with ax square plus bx plus c. Okay. Here the value of a is 5, b is 17 and c is 6. Now calculate b square minus 4ac. Then b square means 17 square minus 4 into 5 into 6. Okay. Square of 17 is 289 minus
multiply it. 5 3s are 30, 30 4s are 120. Okay. Now after subtraction we get 9 6 1, which is a perfect square. It is a perfect square of 13. Okay. Then we can say that 5x square plus 17x plus 6 is a factorial. Now check it. Plus 6, factorize it. For this, we split the middle term, which is b, means 17. We can write it 15x plus 2. Okay, plus 2x. When we add 15x plus 2x, we get 17x, and when we multiply 15 into 2, we get 30x. Okay. Now, after taking common 5x, x plus 3, here we take common 2, we get x plus 3. Okay. Now, we take common x plus 3 from the complete equation, then 5x plus 2. This is the final answer of the question. Okay. Okay, student. Now the next type is difference of 2 square. Okay. Here we use the identity a square minus b square is equals to a minus b, a plus b. Okay. Let's see the examples. First question is 25a square minus b square. We can write 25a square in the form of 5 whole of square of 5a minus b square. Now use the identity. This equation becomes 5a minus b, 5a plus b. Okay, this is the answer. Now the next question is a square minus whole of 2a plus 3b whole of square. Okay. Here, firstly, we use the identity of a square minus b square. Then a minus 2a plus 3b and a plus 2a plus 3b. Okay. Now, solve this. You know that when we open this bracket, the sign will be changed. Plus 2a become minus 2a and plus 3b become minus 3b. Okay. And a plus 2a plus 3b. Then here a minus 2a is minus a minus 3b, and here a plus 2a becomes 3a plus 3b. Okay. Here we take common 3 from 3a plus 3b. After taking the common, it becomes 3 bracket a plus b. Then the final answer is 3a plus b bracket minus a minus 3b. Now the next question is 4x square minus 12ax minus y square minus z square minus 2yz plus 9a square. Okay. Here we write 4x square minus 12ax plus 9a square. Okay. Now from minus z square minus y square minus 2yz, we take common minus sign only. It becomes y square plus z square plus 2yz. Okay. Now this equation we can write 4x square in the form of 2x whole of square minus 2x into 3a plus 3a whole of square minus
it become y plus z whole of square. Check it. A square plus b square plus 2ab. Okay. Here we use a minus b whole of square, then it become 2x minus 3a whole of square minus y plus z. Clear, students? Now we use the identity. A square minus b square. Okay. The value of a is 2x minus 3a and b is y plus z. Okay. Now use it. It becomes 2x minus 3a minus y plus z and 2x minus 3a plus y plus z. Okay. Then your answer is 2x minus 3a minus y minus z and 2x minus 3a plus y plus z. This is your final answer. Okay. Okay, student, the next question is a minus 1 minus b minus 1. Okay. Then what will we do? Firstly we multiply a, then a square minus a minus b square. Student, here is minus b and plus 1. Minus b and minus 1 is plus b. Okay. Now after that we arrange it. Okay. Then a square minus b square minus a plus b. Okay. Here we use the identity a square minus b square, which is a minus b and a plus b. Okay. Now here we take common minus sign. After taking the common minus sign, we get a is positive minus b. Okay. Now take common a minus b. From the complete equation we get, after taking common it, we get a plus b. Here we get a plus b and minus 1. Okay. Then the answer is a minus b bracket a plus b minus 1. Now the type 5 of question, the sum or difference of two cubes. Okay. Here students we use identity x cube minus y cube is equals to, we know that this identity in the previous chapter I discussed these identities. Okay. X cube minus y cube is equals to x minus y x square plus xy plus y square. Okay. And x cube plus y cube is equals to x plus y x square minus xy plus y square. We use these two identity when we have the sum or difference of two cube. Let's see one example. The example is factorize x a cube minus 27. Now, in this type of question, firstly we can write 27 the whole cube of 3. Okay. Here now we use the identity. Okay. Then it become, we know that the identity x a minus 3 and a square minus 3a plus 3 square. Okay. Means a minus 3 a square minus 3a plus 9. These are the factors of a cube minus 27. Okay, students? Now, students, the next, these are the miscellaneous question of this exercise. Now, I discuss all type of questions. This is miscellaneous questions. Okay.
The question is 5a square minus b square minus 4ab plus 7a minus 7b. Now, student, firstly we count the term. This first, second, third, fourth, fifth. Here are fifth term. If we make the pair of two terms, then here the one term is extra or one term is, या तो एक टर्म एक्स्ट्रा है या एक टर्म कम है. तो ऐसी कंडीशन में या तो हमें यहाँ पे 6 टर्म करने पड़ेंगे या 4 टर्म. क्लियर? देन नाउ सी द सॉल्यूशन. व्हाट विल वी डू? फर्स्टली 5a स्क्वायर we can write minus 4ab is minus 5ab plus ab. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, minus 4ab plus ab is minus 4ab, sorry, minus 5ab plus ab is minus 4ab. Okay, now b square plus 7a minus 7b. Clear? Now these are the two steps, these are the two steps, and these are the two steps. Now what will we do again? Here we take common 5a. After taking common 5a, we get a minus b. Here we take common b, we get a minus b, and after 7 a minus b. Now we take common a minus b from complete equation. Then the remaining term is, after taking the common a minus b, we get 5a plus b plus 7. Okay, this is the answer. Now here in this question, what will we do? Firstly we multiply it. It becomes 2ab plus 2cd minus a square minus b square plus c square plus d square. Students, here if we can write it a square minus b square minus, plus 2ab, only we arrange the terms. Okay, हम सिर्फ terms को arrange कर रहे हैं. And plus c square plus d square plus 2cd. Okay, now what will we do? After taking the common minus sign, we get a square plus b square minus 2ab, and here student, this is the formula of c plus d whole of square. Check it. C square plus d square plus 2cd. Clear now? Then, and this is the formula of a minus b whole of square. Now we set it. Clear? Here we use the identity a square minus b square. After using the identity, which is a minus b, a plus b, c plus d minus a minus b, and c plus d plus a minus b. Okay, now c plus d minus a minus minus plus b, c plus d plus a minus b. Okay, these are the factors of the polynomial this. Clear? Now students, that's all for today. Actually this is the last class of the chapter factorization. I hope you all are clear. These all questions are from your book exercise. Now you can easily solve the exercise. You can solve all the questions. If you have any problem, then ask to me in your WhatsApp group. Thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is rotation and revolution. This is related to the history chapter of 9th ICSE board.
नाउ इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रोटेशन। मैंने बताया देयर आर द टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, द फर्स्ट इज रोटेशन एंड द सेकंड इज रेवोल्यूशन। इन रोटेशन अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस इन 24 आवर्स। जैसे कि हमें बताया कि अर्थ जो है अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है और इन्हीं रोटेशन से डे एंड नाइट होते हैं, जिसमें मैंने आपको इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बताया था कि किस तरीके से डे और नाइट को जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड करता है उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सो द रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेवोल्यूशन। द सेकंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो जब तक मैं आपको रेवोल्यूशन पढ़ाऊं उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे अर्थ में लगता है कोरोलिसिस इफेक्ट, जिसमें दो तरह के हमारे जो है वो फोर्स होते हैं। द फर्स्ट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द सेकंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दो फोर्सेस मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले जो कोरोलिसिस इफेक्ट था इसको डिस्क्राइब किया था 1935 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गस्टव कॉर्नस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस इफेक्ट को जो है वो डिस्क्राइब किया था। इसमें उन्होंने बोला कि ऑल मूविंग बॉडीज, मतलब जितनी भी मूविंग बॉडीज है, मूविंग का मतलब मोशंस है, विंड्स है, जो बराबर मूव करते रहते हैं, तो अर्थ में जितनी भी मूविंग बॉडीज है वो जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर है, जितनी भी मूविंग बॉडीज नॉर्थ हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर यू ऑल नो, मैंने बार बार बताया है, इक्वेटर डिवाइड करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो जितनी भी नॉर्थ हेमिस्फीयर की जितनी भी जो है मूविंग बॉडीज है, वाटर बॉडीज या ओशंस या विंड्स जितनी भी है, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द राइट। इसको हम लोग जो है वो डायग्राम से भी समझेंगे, लाइक दैट। मान लीजिए ये हमारा, हमने इसमें नदर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर है तो देखिए जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं, जो भी हमारी मूविंग बॉडीज होंगी वो हमारी देखिए राइट में, दिस इज द राइट, तो ये हमारी राइट में डिफ्लेक्ट करती है, राइट में मूव करती है, क्योंकि रोटेशन भी देखिए हमारा ऐसे जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये क्या करेंगी, जितनी भी नॉर्थ की है, नॉर्थ हेमिस्फीयर की, वो सारी राइट में टुवर्ड्स द राइट जो है वो डिफ्लेक्ट करती है, बट एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। और इसी तरीके से मैं आपको उससे बता दूंगी कि सदर्न हेमिस्फीयर में अगर होगा लाइक दैट, इट्स सदर्न हेमिस्फीयर, तो ये क्या करेंगी, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं तो दैट इज ये लेफ्ट में, ये जो है हमारी, ये लेफ्ट में हमारी जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जो है ये मेरे हमारी डिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारी, ये जो होता है ये किस वजह से होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो है वो आगे होता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कोरोलिसिस इफेक्ट पड़ता है, जो कि जिसको कि फर्स्टली डिस्क्राइब किया था गस्टव कॉर्नस ने। ओके, एंड नाउ अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस। अब देखिए मैं इसको आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरा एक डिस्क्राइब करूंगी। अ फोर्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस से आगे जा रहा है ऑफ द रोटेशन। जैसे कि हम एक लाइक स्पिनिंग टॉप, अगर हम किसी स्पिनिंग टॉप को देखते हैं तो वो कॉज करता है अ बल्ज एट द इक्वेटर, वो इक्वेटर से घूमता हुआ है, जो बीच में उसके बल्ज होता है। बल्ज का मतलब होता है जब भी हम किसी जो है उस चीज को देखेंगे तो ये जो चीज होती है बीच की, दैट इज कॉल्ड द बल्ज, ये बल्ज होता है। तो जो बल्ज है वो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ये क्या करता है, स्पिनिंग करता है और एक बल्जेस को कॉज करता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड नाउ द सेकंड इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये बैलेंस करता है, ये वो फोर्स है, इट बैलेंसेस द फोर्स दैट इज पॉसिबल फॉर ए रोटेशन। मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो हमारा जो रोटेशन होगा उसको हम बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब होता है जब वो अंदर की तरफ वो फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए 10 पैकी के सर्कल है और ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक मान लीजिए हमने थ्रेड लिया और थ्रेड से हमने किसी चीज को इसमें बांधा, तो क्या होता है, ये
अगर ये ऑर्बिट ना हो, ये लास्ट ये वाला हमारी जो है वो बाहर की लाइन ना हो, तो क्या होगा, ये चीज बाहर निकल जाएगी। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, तो ये या तो इधर की तरफ भागेगी, यहाँ पर हम आएंगे तो इधर की तरफ जाएगी, यहाँ आएंगे तो हम इधर की तरफ जाएगी। बट क्योंकि ये हमारी ऑर्बिट है अर्थ की, तो वो इसी में ही अगर उसको जो है वो अराउंड करना है, तो वो यहीं पे ये अराउंड करती रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। अगर उसको बाहर निकलने का मौका मिलेगा तो फिर वो अपने डायरेक्शन में जाएगी। तो इट इज कॉल्ड centripetal force, or this is the centrifugal force. That is the difference between the centripetal and the centrifugal forces. I think आपको समझ में आया होगा। And now, अब ये हमारा रोटेशन हुआ, and now the what is revolution? The second movement of the earth is called revolution. The revolution is the motion of the earth along its elliptical orbit around the sun. बार-बार मैं बता रही हूँ कि ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में जब अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में ही जो है मूव करती है, लाइक दैट, दिस इज द सन, और ये ऑर्बिट हो गई और ये हमारी अर्थ हो गई। जब इस तरीके से और अर्थ जो है वो अपनी सिर्फ ऑर्बिट पे, तो वो यहाँ पे अपना रोटेशन भी कंप्लीट करती रहती है और ऐसे करके ये पूरा राउंड भी लेती रहती है। अब इसको टाइम क्या लगता है, 365 1.4 डे लगता है, मतलब कि 365 तो पूरा लगता है और 1/4 डे भी लगता है। इसीलिए जब 1/4 जब 4 इयर्स में ये 1/4 आपस में ऐड हो जाते हैं तो वो एक दिन बन जाता है, और जो वो डे बनता है उसको हम लोग लीप ईयर करते हैं, जो कि हमारी फरवरी के मंथ में 28 होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो 29 जो है डेज हम लोग फरवरी में काउंट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द लीप ईयर, ठीक है। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पेरिहेलियम एंड एफिलियम। अब ये एफिलियम और पेरिहेलियम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो डिस्टेंस है हमारा अर्थ से जो है वो सन से अर्थ का, वो है मान लीजिए 150 मिलियन किलोमीटर। हमारी जो अर्थ है, ये मेरा हमारा सन है, दैट इज, ठीक है। तो ये हमारा 150 मिलियन किलोमीटर है। तो अब देखिए मैं पहले बताऊंगी कि पेरिहेलियम क्या है। पेरिहेलियम क्या होता है, अराउंड और नियर, जब जो अर्थ होती है वो सन के पास होती है, अराउंड का मतलब उसका डिस्टेंस कम होता है। जैसे कि जनवरी 3rd, जब जनवरी 3rd आता है, ठीक है, 147 किलोमीटर, जैसे मान लीजिए दिस इज द अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो है ये हमारा हो गया 147 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ पेरिहेलियम, क्योंकि ये नियर है, इट इज पेरिहेलियम, ठीक है। और ये देखिए ये आपका डिस्टेंस ज्यादा है, तो इट इज 157 जो मैंने बताया एपीलियन, इसको हम लोग बोलते हैं अवे फ्रॉम, जब ये सन से दूर हो जाती है। तो ये जुलाई 4 में होता है, और ये जैसे कि 152 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया पेरिहेलियम एंड इट इज एपीलियन, ओके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिहेलियन एंड एपीलियन। अब यहां पर अगर अर्थ है दिस एंड नाउ, अब डिस्टेंस बताते हैं, फिर स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड में है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ग्रेटेस्ट एट पेरिहेलियम। जो रेवोल्यूशन की जो स्पीड है, रेवोल्यूशन की, जैसे कि हमने रोटेशन में पढ़ा था कि रोटेशन की जो स्पीड थी 1670 किलोमीटर्स पर आवर, वो पर आवर थी, पर आवर में, इसमें कि हमने आपको अर्थ का सर्कमफ्रेंस भी बताया था 40,077 किलोमीटर है, जिसमें कि 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ हमारी रोटेट करती है। अब रेवोल्यूशन की जो स्पीड है, वो वेलोसिटी जो स्पीड होती है इसकी, तो वेलोसिटी स्पीड जो होती है वो ग्रेटर होती है कहां पर, जहां पर पेरिहेलियम होता है। जहां पर पेरिहेलियम होता है यहां पर वो ग्रेटेस्ट हो जाती है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जहां पर एपीलियन होता है वहां पर इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। अब हमने ये पढ़ा रेवोल्यूशन के बारे में। अब हमारा, तो आज मैंने आपको कॉर्निसेस इफेक्ट, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल और रेवोल्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स बताए। एंड नाउ that is all for today, but in my next video I will explain you about the effects of revolution and the inclination. I will explain you again the inclination, the effect of inclination, it's also very important. And the last topic is seasonal changes, and most probably if possible, so I will also explain the
summer solstice, the winter solstice, and the equinoxes. So that's all for today. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड विषय हिंदी के अंतर्गत बच्चों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको पत्र लेखन बताया था। मैंने पत्र की परिभाषा के साथ साथ पत्र कितने प्रकार के होते हैं यह भी आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि पत्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसके उपरांत बच्चों, मैंने आपको औपचारिक पत्रों के भी प्रकार बताए थे। आज मैं इसी टॉपिक को जारी रखते हुए कुछ पत्रों के उदाहरण आपको लिखवाऊंगी, जिन्हें आपको अपनी C-W की कॉपी पर लिखना है। तो बच्चों, पत्र लेखन के अंतर्गत जो एक प्रकार आता है, पहला प्रकार आता है औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रकार है प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है आज यह आप जानें। तो सबसे पहले बच्चों, आपकी कॉपी पर हाशिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाशिया। इसे हाशिया बोलते हैं। इसके उपरांत बच्चों, आप विषय लिखेंगे। क्या लिख जाएंगे? विषय। विषय क्या लिखा हुआ है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। विषय क्या बताया बच्चों मैंने? फिर से देख लीजिए। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। बच्चों, आप पत्र लिखते समय सबसे पहले आप अपनी वाणी क्या लिखेंगे? सेवा में। इसके बाद बच्चों आप कॉमा लगाएंगे। क्या लिखेंगे? सेवा में। फिर क्या लगाएंगे? कॉमा। इसके बाद बच्चों लिखेंगे प्रधानाचार्य, और प्रधानाचार्य लिखने के बाद भी क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, तो लिखेंगे शिवाजी इंटर कॉलेज, और इसके बाद भी बच्चों क्या लगाएंगे? आप कॉमा लगाएंगे। फिर पता लिखेंगे केशव नगर कानपुर। इसके उपरांत बच्चों एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर डालेंगे आप हेडिंग विषय, और विषय में लिखेंगे छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। विषय में क्या लिखेंगे आप? छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। फिर बच्चों एक लाइन और छोड़ेंगे, इसके बाद लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? महोदय, कॉमा लगेगा। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने पिछली कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और विद्यालय भर में प्रथम स्थान पाया। मैंने भाषण और निबंध प्रतियोगिता में न केवल विद्यालय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं, बल्कि अंतर विद्यालय का मतलब होता है बच्चों जहाँ अनेक विद्यालय के छात्र आते हैं और कोई प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, बल्कि अंतर विद्यालय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार पाए। इसके बाद बच्चों पैराग्राफ आप चेंज कर देंगे, फिर लिखेंगे महोदय, मेरे पिताजी की छत्रपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मेरी माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं और उनकी बहुत ही सीमित आय, और उनकी बहुत ही सीमित यहाँ लिखेंगे आय है। घर में मेरी एक छोटी बहन व
लिखी सूचना पट पर यह सूचना पढ़ी कि आप योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। एक बार बच्चों पुनः इसके विषय को आप देखिए, क्या लिखेंगे? महोदय, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैंने पिछली कक्षा की परीक्षा में विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और विद्यालय भर में प्रथम स्थान पाया। मैंने भाषण और निबंध प्रतियोगिता में न केवल विद्यालय स्तर पर बल्कि अंतर विद्यालयीय स्तर पर भी अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। फिर पैरा चेंज करेंगे। इसके बाद बच्चों लिखेंगे महोदय, मेरे पिताजी की छत्रपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। मेरी माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं और उनकी आमदनी बहुत ही सीमित है। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन व बूढ़ी दादी जी हैं। मैंने कल ही सूचना पट पर यह सूचना पढ़ी कि आप योग्य व जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। इसके उपरांत बच्चों आगे जो लिखेंगे वो इस प्रकार होगा। पैराग्राफ चेंज कर देंगे आप और लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। बच्चों इसके बाद आप बाईं तरफ लिखेंगे धन्यवाद और धन्यवाद के बाद संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। इसके उपरांत बाईं तरफ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। बच्चों परीक्षा के दौरान जब भी हम पत्र लेखन कर रहे होते हैं उस समय ना तो हमें अपना नाम लिखना चाहिए और ना ही अपना रोल नंबर लिखना चाहिए, बल्कि हम क्या लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य इसके उपरांत बच्चों आप क्या डालेंगे दिनांक और
और दिनांक में आप लिखेंगे 4/7/2020। बच्चों दिनांक आप कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिस डेट को मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मैंने वही डेट यहाँ पर क्या कर दी है, डाल दी है। तो बच्चों आपको मैंने आज क्या बताया, प्रार्थना पाठ। बच्चों पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक पत्रों के प्रकार में मैंने एक प्रकार आपको बताया था, संपादक के नाम या प्रकाशक के नाम पत्र। आज इस वीडियो में मैं आपको दूसरा पत्र जो लिखवा रही हूँ वो है प्रकाशक के नाम पत्र। तो सबसे पहले मैंने विषय लिखा हुआ है। आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं। पत्रिका के प्रकाशक से पत्र लिखकर पूछिए कि पत्रिका का वार्षिक मूल्य क्या है और आपको वह पत्रिका क्यों पसंद है। विषय क्या बताया बच्चों कि आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं। पत्रिका के प्रकाशक से पत्र लिखकर पूछिए कि पत्रिका का वार्षिक मूल्य क्या है और आपको वह क्यों पसंद है। तो बच्चों औपचारिक पत्र के अंतर्गत जब हम इस तरह के पत्र लिखते हैं तो शुरुआत किधर से करते हैं, बाईं ओर से करते हैं। तो सबसे पहले लिखा जाएगा मुख्य प्रबंधक। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों आप, मुख्य प्रबंधक, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा। इसके बाद किस प्रेस से वो पत्रिका निकलती है, तो मान लो प्रेस है दिल्ली प्रेस, तो आप क्या लिखेंगे, दिल्ली प्रेस। और फिर इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, कॉमा लगेगा। इसके बाद लिखेंगे पता। पता के अंतर्गत झंडे वाला एक्सटेंशन, झंडे वाला एक्सटेंशन नई दिल्ली, और इसके बाद लिखा हुआ है पिन कोड। बच्चों कई जगह पत्रों में हमें पिन कोड लिखने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा पत्र जो है आसानी से जिस तक हम पत्र पहुंचाना चाहते हैं उस तक पहुंच जाए। इसके बाद बच्चों यहीं पर आप दिनांक डालेंगे, और दिनांक चूंकि आज जैसा मैंने भी बताया था कि आज 4 जुलाई है, तो मैंने यहाँ पर 4 जुलाई लिखा है, तो 4 जुलाई 2020। इसके बाद बच्चों औपचारिक पत्र के अंतर्गत फिर क्या लिखा जाता है, विषय। तो आप क्या डालेंगे, विषय। और विषय में क्या लिखेंगे, पत्रिका का नियमित ग्राहक बनने के संदर्भ। आप किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हो कि आप किसी पत्रिका के नियमित ग्राहक बनना चाहते हैं, तो आप विषय में क्या लिखेंगे, पत्रिका का नियमित ग्राहक बनने के संदर्भ। इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे महोदय, और महोदय के बाद बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमा लगेगा। अब इसके बाद आप लिखेंगे मैं सफदरगंज इनक्लेव का निवासी तथा आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरिता का तथा आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरिता का नियमित ग्राहक बनना चाहेगा। बच्चों यहाँ आप कोई भी पत्रिका का नाम लिख सकते हो, ग्राहक बनना चाहेगा। कृपया पत्रिका के वार्षिक मूल्य, वार्षिक मतलब साल भर पर की कीमत, पत्रिका के वार्षिक मूल्य तथा सदस्यता लेने के बारे में जानकारी दें। लेने के बारे में क्या दें, जानकारी दें। मुझे यह पत्रिका, चूंकि यहाँ पूछा गया कि आपको यह पत्रिका क्यों पसंद है, तो इसका उत्तर देते हुए आप क्या लिख रहे हैं, मुझे यह पत्रिका इसके विविध विषयों, सरल भाषा, जीवन से जुड़े प्रसंगों और रोचक जानकारियों के कारण अत्यंत पसंद है। मेरे परिवार के लोग भी सरिता को पढ़ना पसंद करते हैं, सरिता पढ़ना पसंद करते हैं। ना केवल जो पत्र लिखने वाला है बल्कि पत्र लिखने वाले के जो परिवार वाले हैं वो भी सरिता पत्रिका को पढ़ना क्या करते हैं, पसंद करते हैं।
बाद बच्चों आप जो है अपना पता लिखोगे। सपोज दैट कल्पना कीजिए कि मैंने ये पता लिखा 1507 काकादेव कानपुर नगर। और इसके बाद आप अपना क्या लिख सकते हो, पिन कोड भी लिख सकते हो। मान लो काल्पनिक मैंने यहाँ लिख दिया 208014। ठीक, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज मैंने इस वीडियो में आपको 2 पत्र लिखने बताए। पहला पत्र कौन सा बताया मैंने आपको? पहला पत्र